श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनो, पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री निताई गौरांग की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेम नंदे हरि बोल। Hare Krishna, welcome all the devotees. So today we are going to start 5th chapter, that is Karma Yoga, action in Krishna consciousness. That is the name of the chapter. Karma Yoga, action in Krishna consciousness. The name of the 3rd chapter was Karma Yoga. 4th chapter, transcendental knowledge, means Jnana Yoga. Now 5th chapter, Karma Yoga, action in Krishna consciousness, means you have to do your duty, and that duty should be in the conjunction with the Supreme Lord. That is, duty must be centered around Krishna. So these two chapters, 3rd and 5th, there is slight difference. That is Karma Yoga. This is Karma Yoga, action in Krishna consciousness, means even though you are doing Karma Yoga, but you are conscious that I am doing it for Krishna. Many times we do our duty, and Karma Yoga means, as we have understood, discussed very nicely, Karma Yoga means you do your duty and result you give it to Krishna. That is Karma Yoga. And if you yourself enjoy the result, then that is karma. That is binding. So analogy we had discussed about this karma and Karma Yoga was spider and silkworm. So spider, he creates a web by its saliva, and it does not get captured by that saliva web. But silkworm also uses its saliva and makes a web, a cocoon, and but that silkworm gets trapped very strongly and gets suffocated and dies. So that's the difference between cobweb and cocoon. Cobweb is made by spider and cocoon is made by silkworm. So we should not be like silkworm, we should be like spider. Even though you are performing duty, you should not get trapped. So this is the analogy. By this we understand the difference between karma and Karma Yoga. Karma binds, Karma Yoga liberates. But there is another concept, understanding, that is explained in 5th chapter. Karma Yoga, action in Krishna consciousness, means you are conscious that I am doing my duty in Krishna consciousness. You remember Krishna, you think of Krishna, and then you are performing duty. So Karma Yoga you are doing and offering the result to Krishna. कर्म योगा एंड 5th चैप्टर में बता रहे हैं कृष्णा कि कर्म योग तो करना है, और लेकिन वो रियलाइज भी होना, कॉन्शियस भी होना, कृष्ण कॉन्शियस होते हुए कर्म योग करना। मीन्स चैंटिंग एक तो होता है, आप स्टडी कर रहे हो, चैंटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, आप अपना रिजल्ट ऑफर कर रहे हो, बट वी हैव टू पैरेलली चैंट हरे कृष्णा, we have to do some services, and then
Along with that, we have to offer our results to Krishna. So this is fifth chapter we'll be discussing. Fifth chapter is a relatively small chapter, only 29 verses. And fourth chapter was very important. So we discussed a lot about all the different verses. Fifth chapter is relatively small and will quickly able to finish this fifth chapter. Mostly tomorrow we'll be finishing this chapter. So let us first take the quiz of yesterday's class and then we'll come to our fifth chapter. So yesterday we had discussed about fourth chapter. Yesterday's class was a little longer, but anyway, we discussed a lot about sacrifices and how to understand the truth by approaching a spiritual master and many other things. So the questions were, how many times were Kshatriyas all over the earth killed by Lord Parasuram? ये थोड़ा सा इसमें एक change है. It was not 27 times but 21 times. So anyway, I understand that you would have chosen fourth option. So anyway, fourth option आपका accept किया जाएगा, but यहाँ पर 21 होगा. Actually, Parasurama killed Kshatriyas for 21 times. So why the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra? To take part in fight of Mahabharat war no, to perform sacrifices at the holy place to see their beloved Lord Krishna. So actually it was option C. Why inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra? They were not interested in sacrifice and all. They wanted to see the Lord, their beloved Lord. So option C was the correct answer. हम लोग कल discuss किए थे बहुत अच्छे से. If an individual has the good fortune to learn about Krishna's glorious activities, then the person will be freed from repetitive birth and death. As all the misfortunes of that person will go away, the person becomes entangled in the material world. The person becomes entangled in material world. ये गलत है. बाकी A and B correct है. So option D will be the right option. नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसका मतलब क्या है? कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय कर्मा. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. लेकिन ऑप्शन डी भी आप देखेंगे तो कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय कर्मा एंड दोज हु अंडरस्टैंड इट आर नॉट entangled by fruitive action. So option D will be the more accurate answer. So option D will be correct. Which verse tells that Krishna is never bound by any of the action he performs? So again the same above verse. So this verse is 4.14 or 16. आप देख लेना. Rain and tree analogy explains that if we satisfy Krishna, then all get satisfied. Without Lord, we cannot perform action, but Lord is not responsible for our action. So option B will be correct. Rain and tree analogy explains that Lord, without Lord's mercy, we cannot get the result, but still Lord is not responsible of our action. हम मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो आप पाप कर रहे हैं, तो Lord is not responsible, but without Lord's sanction, you cannot do also. So Lord sanctions, even to perform sinful activity. Ultimately, Lord has to sanction. If Lord will not sanction, then you cannot do anything. But Lord is not the responsible because we wanted to do. आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर में ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया कृष्णा ने, थोड़ा डेप्थ में हम इसको डिस्कस करेंगे. बट लॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. एनालॉजी कम्स ऑफ रेन एंड ट्री. जैसे आप प्लांट का सीड लगाते हैं तो वो सीड ग्रो होता है, बड़ा होता है. It is because of the seed, not because of the rain. But without rain, seed will not grow. So, but actually, it is growing because of the seed. If seed is not there, then rain, कितना भी rain flow हो, rain कितना भी गिरे, वो बीज जो germinate नहीं होगा. But अगर आपने बीज लगा दिया,
सो रेन के कारण वो बीज जर्मिनेट होगा, बट रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. So which analogy illustrates that the same activity that binds us can also set us free? Milk and curd analogy. So milk से हमारा पेट खराब होता है, लेकिन वही मिल्क को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दो, वो दही जब बन जाएगा तो आपके पेट को सही कर देगा. उसी तरीके से हमें वही एक्टिविटी बाइंड कर रही है, लेकिन उसी एक्टिविटी में आप कृष्णा को ऐड कर दो, उस एक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर दो, एक्टिविटी आपको लिबरेट कर देगी. तो कितना अच्छा एनालॉजी है ना ये, मिल्क एंड कर्ड. मिल्क ज्यादा पी लेते हैं तो ओवर इंडल्जेंस इन द मिल्क causes upset in our bowels, right? But same milk, just transform it. Same milk, just transform it by adding some curd into that milk. So whole curd milk will become curd. Now you consume that curd, your bowels which was upset, now it will become set again. So उसी तरीके से कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसके कारण हम बंध जाते हैं, लेकिन उसी एक्टिविटी में अगर हम कृष्णा को ऐड कर दें, so that activity, same activity will liberate us. So here one understanding comes that bhakti does not mean giving up activity. Bhakti just transforming our activity from milk to curd. जैसे मिल्क से कर्ड में आप ट्रांसफॉर्म करके कर्ड को लो तो पेट सही हो जाएगा, उसी तरीके से हमें एक्टिविटीज को करना है, बस उसमें कृष्णा को ऐड कर देना है बस. सो वी हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द एक्टिविटी. द नेचर ऑफ द एक्टिविटी शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड. अभी हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जस्ट कृष्णा की इंद्रिय तृप्ति के लिए करो बस. सो कृष्णा शुड बी सैटिस्फाइड, ये हमारा मूड अगर है, सो सेम एक्टिविटी विल लिबरेट यू. सो एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है. भक्ति डज नॉट मीन लिविंग द एक्टिविटी. अभी अर्जुन फिर से कंफ्यूज होने वाले हैं. 4th चैप्टर में कृष्णा ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए ना, सैक्रिफाइस परफॉर्म करो, गुरु को अप्रोच करो, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देंगे, ये सब बोलते बोलते एंड में कृष्णा ने क्या बोल दिया, गिव अप, गेट अप एंड फाइट. सो अर्जुन फिर से कंफ्यूज, सर पकड़ लिए, अरे कृष्णा आप तो भक्ति करने के लिए बोलते हो, फिर बोलते हो फाइट करो, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, कैसे करूं मैं. तो अर्जुन बार बार 3rd चैप्टर में भी कंफ्यूज हो गए थे, 5th चैप्टर में. तो इससे ये समझ में आता है कि अर्जुन एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं है, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि प्रभु भक्ति करें कि पढ़ाई करें, है ना. हम लोग ये एक्टिविटी जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु भक्ति करें कि पढ़ाई करें. अरे दोनों को आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, आपने इसका मतलब भक्ति को समझा नहीं. इसलिए अर्जुन जो है वो एक हमारे जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति बन के क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा कृष्णा युद्ध करें कि भक्ति करें. तो वही सेम क्वेश्चन 5th चैप्टर में आने वाला, बहुत मजेदार रहेगा. 2 मिनट में हम स्टार्ट कर. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ये कृष्णा ने 4th चैप्टर वर्स नंबर 34 में बोला. इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, रेंडर डिवोशनल सर्विस अनटू हिम, नो. ऑलवेज हैंकर बिहाइंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नो. परफॉर्म sacrifices to satisfy Lord Vishnu, no. Learn the true knowledge by a bona fide spiritual master and serve him. So option D will be correct. So ये वर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये बताता है कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना ही पड़ेगा. यहाँ कृष्णा खुद बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि यू हैव टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर. विदाउट अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर यू कैन नेवर लर्न द ट्रूथ. सो अर्जुन भी स्पिरिचुअल मास्टर का अप्रोच किए हों. अर्जुन के केस में स्पिरिचुअल मास्टर कृष्णा थे, बट इन आवर केस वी हैव टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर. विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द ट्रूथ. क्योंकि यहाँ पर 3 चीज भगवान ने बताया. स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जाओ, सरेंडर करो और सेवा करो, हम्बली इंक्वायर करो, तब आपको ट्रूथ को रिवील करेंगे. तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग गूगल को अपना गुरु मान लिए हैं, सरेंडर कर देते हैं. तो यहाँ पर जो वर्स है कि गुरु को अप्रोच करना है, तो हम भी गुरु को अप्रोच करते हैं, गूगल गुरु. तो प्रणिपात कर दिया, प्रणिपात मीन सरेंडर, तो हमने गूगल को सरेंडर कर दिया. लेकिन दूसरा और तीसरा जो हम मिस कर देते हैं, सेवया, हम सेवा नहीं कर. गूगल गुरु कैसे सेवा करोगे, गूगल गुरु आपको और एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी सेवा में लगाते हो, इंस्टेंस ग्रेटिफिकेशन लगा देते हैं गूगल. तो वहां सेवा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए आपको ट्रूथ रिवील नहीं होगा. तो प्रभुपाद यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको अगर ट्रूथ अंडरस्टैंड करना है तो आपको गुरु के पास जाना है, सरेंडर करना है, उनकी सेवा करनी है, एंड हम्बली इंक्वायर करना है, एरोगेंस में नहीं. तो हम हम्बली इंक्वायर करेंगे तो क्या होगा, गुरु बहुत खुश होके आपको इनलाइटन कर देंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर भगवान ने ये नहीं बोला कि गूगल गुरु के पास जाओ, यहाँ पर भगवान ने बोला है आप जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को देखा और जाना है, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो. उनकी सेवा करोगे तो वो रिवील करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. गूगल गुरु के पास नहीं जाना है, कोरा में नहीं जाना है, यूट्यूब में नहीं जाना है, एक गुरु के पास जाना है.
तो हम लोग क्या बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे सारा ज्ञान लेना चाहते हैं। आप ज्ञान तो ले लोगे लेकिन वो विज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? कौन बताएगा? क्षितिज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? आशीष, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? किसी को नहीं पता? कौन बताएगा? ध्रुव बताओ। प्रभु, ज्ञान वो है जो आपको भगवान से कनेक्टेड रखे, और विज्ञान प्रभु विज्ञान का एक, हाँ बताइए। प्रभु विज्ञान का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले जैसे इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हाइपोथेसिस आता है, फिर थ्योरी दी जाती है, और फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो विज्ञान तो ये है। और ज्ञान, तो ज्ञान का आइडिया नहीं, ज्ञान से तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान मतलब सिंपल नॉलेज। ठीक है, आप थोड़ा सा सही बताएं। तो ज्ञान मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज एंड विज्ञान, ये 7 चैप्टर में कृष्ण बताते हैं व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज विज्ञान। 7 चैप्टर के फर्स्ट वर्स में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रेया पांडे ने चैट में लिखा है, इन परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर Prabhupada says that scientific knowledge is not perfect because it is all supposed hypothesis, but spiritual knowledge that comes from guru परंपरा that is perfect। So आपने लिखा तो सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? सो ज्ञान मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज। 7 चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं, अगर आपके पास भगवद गीता तो खोल के देखो आप। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यस ज्ञात्वा मोक्ष से असुभात। सो भगवद गीता इज बोथ, इट इज ज्ञान और इट इज विज्ञान ऑल्सो। सो ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब उसी थ्योरेटिकल नॉलेज जब हम रियलाइज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। समझ में आया आप लोगों को? What is the difference between ज्ञान एंड विज्ञान? ज्ञान मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज, जो आप थियोरेटिकल ले रहे हो। प्रैक्टिकल नॉलेज, जब वो थियोरेटिकल नॉलेज आप रियलाइज कर लेते हो तो उसको बोलते हैं विज्ञान। जैसे हम लोग ने साइंस में पढ़ा था H2 + O2 = वाटर। सो हमने ये पढ़ा, ये थियोरेटिकल नॉलेज, ये ज्ञान है। लेकिन जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जाते हैं लैब में और वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेते हैं, कंबाइन करते हैं और वाटर बनते हुए दिखता है हमें, सो दैट बिकम्स विज्ञान। सो हम अगर YouTube से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, कोरा से पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन वो ज्ञान कभी विज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। मीन्स वो कभी आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, आई एम नॉट दिस बॉडी। हमें भगवान के धाम जाना है, ये दुनिया जो है दुख का घर है। ये सब ज्ञान तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। आप अब तब भी आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे, आप ये दुनिया आपको लगेगा ये सब कुछ है, ये तो बहुत अच्छा प्लेस है एंजॉय करने का। आप सब करोगे, इंद्रिय तृप्ति करोगे, इंद्रिय भोग करोगे, और आपको रियलाइज नहीं होगा। ये डिफरेंस है ज्ञान और विज्ञान में। लेकिन जब आप विज्ञान हो जाएगा तो विज्ञान मतलब आप रियलाइज करने लगते हैं, हाँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मुझे आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, आई एम नॉट सपोज टू इंडल्ज इनटू मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, आई एम नॉट सपोज टू वॉच मूवीज। सो ये विज्ञान में कन्वर्ट तब होता है जब हम गुरु को सर्व करते हैं। विदाउट सर्विस फॉरगेट अबाउट रियलाइजिंग, कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे आप। सो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 तरीके से सर्विस की जाती है, प्राण, अर्थ, धिया, वाचा। ये 4 तरीके से सर्विस नहीं करेंगे हम भगवान की, तो हम ये जो नॉलेज ले तो रहे हैं, हम लोग ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान कर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये आपको रियलाइज नहीं होगा कभी। आप वही सेम ट्रैक में चलते रहोगे, आप वही सेम चीज करते रहोगे जो करते आ रहे हो। आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं फील होगा आपको, क्योंकि ये आप सेवा वाला पार्ट नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर कृष्णा ने बोला सेवा करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रूथ अंडरस्टैंड होगा। ये 4.34 वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो सेवा 4 तरीके से की जाती है। पहला प्राण, दूसरा अर्थ, तीसरा धिया, चौथा वाचा। सो प्राण, अर्थ, धिया, वाचा, ये 4 तरीके से अगर आप सेवा नहीं करेंगे ना, तो कभी भी आप ये रियलाइज नहीं, पहली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रियलाइज कर पाएंगे भगवद गीता की कि हम शरीर नहीं आत्मा है।
What is the first understanding of Krishna in Bhagavad Gita? Krishna says, you are not this body, you are spirit soul. That is the first understanding. So यही अंडरस्टैंडिंग हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, यही ज्ञान हमें रियलाइज नहीं होगा अगर हम सेवा नहीं करेंगे, या तो प्राण से, या तो अर्थ से, या धिया वाचा। इसका मतलब क्या हुआ चारों का? प्राण मीन्स डेडिकेटिंग लाइफ, जस्ट लाइक वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ फुल्ली फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. So when we dedicate life, then we can understand everything. So therefore devotees, they have realized everything. So that is one thing. Either you dedicate your life, renounce everything and dedicate your life fully in the service of the Lord, like we have done. But that this is not possible for everyone. Only hardly 0.001% are fortunate whom Lord selects. So this is not by your endeavor, but by Lord's selection. Lord selects and he makes such most fortunate living entities, devotees, to serve him dedicatedly. So that option is not available for everyone, but other three options are available for all of you. दूसरा क्या है? बाकी तीन, एक पहला प्राण था, वो तो केवल चूजन सोल्स को ही मिलता है जो लाइफ डेडिकेट करते हैं. सो आप में से कोई अगर एक दो भी लाइफ डेडिकेट करें तो बहुत अच्छा होगा. फ्यूचर में प्रीचर बने, पूरे लाइफ पूरे वर्ल्ड में प्रीच करना, हमें सब जगह कृष्णा कॉन्स फैलाना. सो वी वांट सम डेडिकेटेड मिशनरीज आल्सो, डिवोटीज. बट एनी, लेट्स सी हु कैन डेडिकेट हिज लाइफ. सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन सबको करना है. पहला नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा करना ही है, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं. क्या है दूसरा? अर्था मीन्स फाइनेंस, मीन्स आपको भगवान को सेवा, डोनेशन देना है. अर्थ तो देना ही है, सेवा, ये सेवा है. अर्थ. धिया मीन्स इंटेलिजेंस, आपको अपने इंटेलिजेंस से भगवान को नाम, भगवान की प्रीचिंग करनी है, भगवद गीता समझना है, इंटेलिजेंस से समझना है और प्रचार करना. और वाचा मीन्स बोलना, कृष्णा के बारे में बोलना, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिससे मिल रहे हैं उसको बोलो, प्रीच करो. सो ये चार चीज अगर हम करेंगे ना, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट तीन, बाकी तीन है. जो जॉब कर रहे हैं वो डोनेट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट हो बाकी दो चीज तो कर सकते हैं. धिया एंड वाचा मीन्स आप इंटेलिजेंस को यूज करो, भगवद गीता समझो, अप्लाई करो, अपना इंटेलिजेंस, माइंड सब लगाओ, करेक्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ये भी सेवा है. अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं ना, तो ये सेवा कर रहे हैं आप. सो आपको इंस्ट्रक्शन रियलाइज होगा. और चौथा क्या है? वाचा मीन्स प्रीच करना है. फिर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड हो गया. नाउ व्हाट यू डू? You have to now preach. So preaching is very important. Unless you preach, you will not realize. So सबको preacher बनना. Everyone has to preach. At least one or two friends of yours, you have to make him devotee. Make him understand Krishna, that I am not this body. Purpose of life क्या है? भगवान के धाम जाना. अब वो दो स्टूडेंट आप तभी preach कर पाओगे जब आप 200 लोगों से मिलोगे, क्योंकि भक्त बनाना आसान नहीं है. अभी 7th चैप्टर में आएगा, कृष्णा बोलेंगे कि बहुत सब आसान है, लेकिन भक्त बनाना आसान नहीं है. हजारों में से एक कोई भक्त बनता है. सो अगर आप 200 लोगों से मिलोगे तो कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो कि भक्ति कर सकता है, इंटरेस्टेड हो. सो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर ये वर्स जो है 4.34 बहुत इंपॉर्टेंट है. People lead a sinful life because of lust, because they are in ignorance. So option B will be correct. हम ignorance में रहते हैं, इसलिए हम लोग पाप करते हैं, और पाप के कारण हम भौतिक जगह पे फंसे रहते हैं. Match the number of species. तो यहाँ पर जो है, ये आप लोगों ने कल अच्छे से अटेंड किया था. जलजा 9 लक्षाणी. तो जल में जो है कितने स्पीसीज हैं? 9 lakhs. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. आप पहला ऊपर वाला ही देखें, उसमें 9 lakhs. वाटर एंटिटीज 9 lakhs. और प्लांट्स एंड ट्रीज कितना है? जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशति. सो 20 लाख प्लांट्स एंड ट्रीज. इंसेक्ट्स 11 लाख, बर्ड्स 10 lakhs, beasts animals 30 lakhs, और ह्यूमन बीइंग 4 lakhs. सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स गिवन इन पद्म पुराण. सो जो कितना एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया है, कितना परफेक्ट साइंस है. यहाँ पर कोई मे बी या परहैप्स वाला स्टेटमेंट नहीं यूज किया है, जैसे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, मे बी, परहैप्स, गेस मारते रहते हैं फालतू में. लेकिन हमारे स्क्रिप्चर देखो, इतना ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे हैं, कोई गेस परहैप्स में भी नहीं है. नो मे बी, परहैप्स, इट मे बी, नथिंग. परफेक्ट. 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज है तो 4 लाख, 9 लाख पानी में है तो 9 लाख. ऐसा नहीं कि 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 5,000. नहीं, गेस नहीं मार रहे हैं हमारे शास्त्र. हमारे साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग दे. सो इसलिए हमें अपने शास्त्रों को ज्यादा फेथ करना है रेदर देन साइंटिस्ट लोगों को. साइंटिस्ट लोग गेस मारते रहते हैं, हमारे शास्त्र कभी गेस नहीं मारते हैं, हमको परफेक्ट नॉलेज देते हैं. सो हमारा जो है शास्त्रों पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, न कि साइंटिस्ट पे. लेकिन अभी उल्टा है, तो फिर से उसको सीधा करना है.
So let us see the result. So Madhav Krishna he has scored 8 marks. Ankur 10 marks. Hari Bol for Ankur. A big round of applause. Loud Hari Bol. Shekhawat 6, बहुत कम नंबर आया है. सुमन 6, पायल 7, तरुण 8, रतिंद्र 10. हरी बोल. रतिन ने पहली बार 10 लाया है. वेरी गुड. एके 10. एके कौन है? आई डिडंट अंडरस्टैंड. डेली एके आ जाता है. पीयूष 10, हर्ष 9, बर्नवाल ये साथ पीयूष ही है. 7 नंबर. सो पीयूष, एके, रतिंद्र और अंकुर ने 10 नंबर्स लाए हैं. सब लोग जोर से हरी बोल बोलेंगे. हरी बोल. So now this is quiz result. Now we'll start our 5th chapter. So now I'm going to discuss the 5th chapter. Let me share the screen. 5th chapter बहुत ही अच्छा है. इसमें जो डिस्क्रिप्शन कृष्णा दे रहे हैं, it is very nice. So our session is dedicated to our beloved spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So एक बहुत अच्छा, बहुत important announcement मुझे करना है. आप लोग ध्यान सुनिए. Just like in 4th chapter, Krishna said that without the instruction of a spiritual master, unless we serve a spiritual master, we cannot advance. So we have to approach a bona fide spiritual master. And as we all know that Prabhupada is most bona fide spiritual master who is available in today's era, in today's time, today's world. Most authorized personality, Acharya Srila Prabhupada, who without any selfish motive, single-handedly went all over the world, preached Krishna consciousness, struggled a lot while he was going to America in the ship, cargo ship, मालवाहक जहाज में जा रहे थे. कोई फ्लाइट वगैरह नहीं था उस समय प्रभुपाद के पास. He just went through cargo ship, and while he was going in Arabian Ocean, he got 2 heart attacks. कितने? 2 heart attacks प्रभुपाद को आए थे. 2 consecutive heart attacks on 2 consecutive nights. So first night ko heart attack, it was so intolerable. Prabhupada was feeling like I am going to die. But by Krishna's grace, he was saved. And then again, so Prabhupada, and because, you know, in ocean, when ship goes, you would have seen in the videos, movies and all, how it appears like ship is now going to sink because waves are coming like anything. Right? So sometimes appears that ship is going inside, then ship is up and down. It goes like zigzag. And your room is vibrating. Just imagine if where you are sitting, that room, your table chair is vibrating like this, 60 degree, 40 degree, you are like doing like this. What will be your situation? You cannot maintain your health. But Prabhupada, 37 days he traveled through cargo ship in the ocean. So in Arabian Ocean, when he reached, it was about 10 days only. He just traveled 10 days in the ship. He got heart attack. Very severe heart attack. Then anyway, that day Prabhupada was saved. Next night, again in the next night, Prabhupada got heart attack. And it was so severe. Prabhupada felt like I am now going to die. And nobody was there. Just imagine, हमारा घर में तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है. अगर घर वाले पापा मम्मी पूछे नहीं, तो हम गुस्से में जाते हैं. कोई पूछने नहीं आता मुझसे, कोई सब सेल्फिश हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई ख्याल नहीं रखता, हम गुस्से में हो जाते हैं. करेक्ट? अगर फादर मदर पूछे नहीं कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई आए नहीं आपके पास, you feel so lonely. But here you see, just try to just visualize what was Prabhupada's situation. Alone. And what for he is going? He is not a beggar poor. He was the most renowned scholar in India. He met Lal Bahadur Shastri, the Prime Minister of India. And Prime Minister of India renowned him as the most scholarly. और प्रभुपाद की सारी बुक्स को उन्होंने ऑथराइज कर दिया. In all the government libraries, Prabhupada's books would be kept.
So आज अगर आप IITs में गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में जाएंगे, I had seen in MNIT, in all government libraries, गवर्नमेंट कॉलेज की जो लाइब्रेरी उसमें प्रभुपाद की बुक्स अवेलेबल हैं. ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में आज जाओगे तो मिल जाएगा. All the books of Prabhupada, Lal Bahadur Shastri had announced this. So Prabhupada was very known, well-known personality in India, knows English very well. He has studied in Scottish Church College. Those days, American, Britishers time. Now, here alone, he is going, nobody is there. 2 heart attacks, 70 years of age. कितना उम्र था? 70 साल. क्यों जा रहे हो? अमेरिका हम लोग क्यों जाते हैं? हम लोग अमेरिका जाते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए. घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, लड़की पटाएंगे, गोरी चमड़ी पटाएंगे. तो ये हमारा डिजायर्स होता है. बट प्रभुपाद इज नॉट फॉर दैट. प्रभुपाद इज गोइंग अमेरिका टू गिव देम most important knowledge, because Prabhupada was knowing these people, they are thinking that they are enjoying, but actually they are suffering. In the name of enjoyment, they are suffering. They don't understand that they are going to die. They will get disease. They will get old days. Life is very horrible here in this world, but out of ignorance, they don't realize this. 4th chapter हमने already पढ़ लिया है. So they were, whole world was in ignorance, but Prabhupada, he was in knowledge because he is Tattvadarshi. 4th chapter 34th verse, याद रखो. He was Tattvadarshi. So he was knowing that world is suffering. So let me go. And उस समय क्या था? Whole world was imitating America. Every country was imitating America. So Prabhupada thought, let me go to America and convert Americans only. So then whole world will follow American, and one shot whole world will be preached. So therefore Prabhupada decided to go to America in New York. But one complete year. अच्छा एक चीज और, 3rd night को प्रभुपाद हार्ट अटैक फिर से आया था. प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक आया. 3rd night को प्रभुपाद को लगा अगर 3rd night को हार्ट अटैक आ गया then I will be finished. So 3rd night also health was very sick. Prabhupada was very sick. Health was not okay. But 3rd night, instead of heart attack, who came, you know? Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Narsimhadev Bhagwan ki jai. Krishna, Radha Krishna, with all his incarnations, they appeared in front of Prabhupada. Prabhupada ये reveal करते हैं कि Krishna appeared in front of me in my dream and he said that don't worry, you just continue. You have embarked on a very impossible mission, but I am there with you. Don't worry, you will be able to succeed in your mission. So प्रभुपाद का क्या मिशन था? प्रभुपाद का मिशन था पूरी दुनिया में भगवत गीता का प्रचार करना. आज हम लोग यहाँ बैठ के भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं. Only one person who takes all the credit is Srila Prabhupada. All the credit goes to Srila Prabhupada. Otherwise, where we were lost. I would not have been here in this place speaking you Bhagavad Gita. I would have been somewhere else and doing all nonsense. But it's all because of Prabhupada we are saved. So Prabhupada को कृष्णा आके ड्रीम में प्रोटेक्ट करते हैं. और then Prabhupada finally reaches to America after 37 days. और फिर प्रभुपाद 1 साल पूरा स्ट्रगल करते हैं. कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है. जस्ट ट्राई टू फिगर आउट. आप किसी एक ऐसे सिटी में जहां कोई नहीं है, कुछ नहीं, पैसे भी नहीं है आपके पास, और कोई कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है. उस समय प्रभुपाद के टाइम पे, उस समय कोई फोन कॉल वगैरह नहीं होते थे. अगर आपको किसी से बात करना तो लेटर लिखते थे, टेलीग्राम होता था. उस सिचुएशन में जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है, नो रिसोर्स, Prabhupada was utterly helpless. He even though he was alone, he was not having anything, still he persisted. He said, no, I have to preach. And then revolution started happening. और चमत्कार हुआ. फिर विदेश अमेरिकन्स को प्रभुपाद ने ट्रांसफॉर्म किया. फिर अमेरिकन्स को अलग अलग कंट्री में भेजा, लंदन में भेजा, ऑस्ट्रेलिया में भेजा, न्यूजीलैंड में भेजा, इंडिया में भेजा. इंडिया में भी वो अमेरिकन्स आके प्रीच किए हैं इंडियंस को. सोचो हम लोग कितने शेमलेस हैं. हाउ शेमलेस इंडियंस आर कि हमारा कल्चर, हमारा नॉलेज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. अमेरिकन्स आर कमिंग एंड टीचिंग अस.
Even today you go to Vrindavan, you go to Mayapur, you will see more than Indians, foreigners are there, Russians are there. So this is all because of Prabhupada. So I have one request to all of you. So आप लोग बहुत ध्यान सुनना है. I have one request to all of you, because all of us are benefiting the knowledge, transcendental knowledge of Bhagavad Gita, able to understand who am I, what is my identity, why am I suffering, ये सारी चीजें, what is purpose of life, all these things we are able to understand. This is only because of Prabhupada. So my request to all of you is that एक आपको छोटा सा काम करना है. क्या करना है? कुछ काम मतलब ऐसे भागने दौड़ने वाला नहीं, बैठे बैठे काम करना है. आपको क्लास के तुरंत बाद पेन एंड पेपर उठाना है, या लैपटॉप में, मोबाइल में, कैसे भी कर सकते हैं. यू हैव टू राइट योर फीलिंग्स फॉर प्रभुपाद. हाउ प्रभुपाद हेल्प्ड यू, हाउ प्रभुपाद इज गाइडिंग यू, हाउ ही टुक यू आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस. वी वर ऑल इन इग्नोरेंस, राइट. हमें यही था कि हम भाई शरीर हैं जी, 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय करो, मर जाएंगे, कौन देखा कल. बट प्रभुपाद ने हमें नॉलेज दिया, नहीं, हम शरीर नहीं, आत्मा है, हम मरेंगे नहीं, हम इटर्नल हैं. इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, मूवी चेंज हो जाएगी बस, लेकिन हम तो रहेंगे. अमिताभ 16 में मूवी से भगवान मूवी में चला जाएगा, लेकिन अमिताभ तो रहेगा. तो भले ही जय मर गया, लेकिन अमिताभ तो जिंदा है ना. उसी तरीके से ये शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी. तो अंडरस्टैंडिंग कौन दिया? ये प्रभुपाद ने दिया. सो आप लोगों को क्लास के बाद कुछ नहीं करना है, पेन एंड पेपर उठाना है, या मोबाइल में व्हाटएवर, आपको वर्ड फाइल में मुझे भेजना है. अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को. उस पे जाके आपको, आपने जो एक पेज लिखना, ज्यादा नहीं, एक पेज लिखना. उसमें पहले आपको ग्रीट करना, प्रभुपाद थैंक यू सो मच प्रभुपाद, और बिकॉज ऑफ यू आई could understand such a wonderful knowledge, great knowledge, ये सारी चीजें. फिर आप उसमें कैसे प्रभुपाद ने आपको हेल्प किया, कैसे आप डार्कनेस में फंसे थे, इग्नोरेंस फंसे थे, कोई आपको रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ तो आप लिखो. और एंड में यू कैन बेग सम, you know, some kind of, any kind of what do you want, you can ask from Prabhupada. Please bless me this, that, please bless me knowledge, please bless me dedication, devotion, please bless me the whatever. Spiritual blessing मांगना, material blessing नहीं कि मुझे नौकरी लगा दो, मुझे लड़की शादी करा दो, ये सब नहीं. आपको spiritual blessing मांगना है. मुझे डेडिकेशन, डिवोशन दीजिए, चैंटिंग मेरा मन लगे, आई मे डेवलप मोर एंड मोर सीरियसनेस इन चैंटिंग, मैं 8 माला कर पाऊँ, मैं 16 माला कर पाऊँ, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से ही हम कर पाएंगे. करेक्ट. 4.34 में कृष्णा ने बोला है, गुरु की कृपा से ही कर पाएंगे. सो आप लोग एक पेज लिखना है सबको. उसमें आपको स्टार्ट करना है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र. पहले सब लोगों को प्रभुपाद प्रणाम मंत्र इंटरनेट में मिल जाएगा, याद करना, वहां लिखना है नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये वाला. और फिर आपको प्रभुपाद को थैंक यू बोलना है. पहले कैसे हम बड़े व्यक्ति को, अगर किसी को लेटर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये लेटर काइंड ऑफ है, आपको लेटर लिखना है. इसको बोलते हैं व्यास पूजा लेटर. क्या बोलते हैं इसको? व्यास पूजा, ऑफरिंग और लेटर. सो हम सब लोगों को एक लेटर लिखना है प्रभुपाद के लिए. दिस इज रियल लव लेटर टू प्रभुपाद, that how much we love to Prabhupada, because Prabhupada loves us. Therefore in that stage, 70 years of age, he went to America. For whom? For us. So that is love of Prabhupada. जैसे एक फादर अपने बेटे को लव करता है, उसके लिए मेहनत करता है, पैसे इकट्ठा करता है, पढ़ाता लिखाता है, लेकिन बेटा इतना नालायक होता है, कॉलेज जाके सारे उल्टे सीधे काम करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा और सारा पैसा वेस्ट कर देगा. 4 साल बाद लौट के आएगा मुंह लटका के. फादर बोलेंगे क्या हुआ, तो ज्यादा बोल देंगे तो लटक जाएगा फैन से. तो फादर बेचारे भी नहीं ज्यादा बोलते, क्या करें. तो फादर के जैसे हैं, जैसे फादर का लव होता है, वो बेचारे सेल्फलेसली करते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटे नालायक निकल जाते हैं, गलत एसोसिएशन फंस जाते हैं. उनको ड्रग्स पीने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं ड्रग्स में क्या रखा है. दारू पीने में कौन सा मजा आता है, दारू पीते हैं नॉनसेंस लोग, पता नहीं. बट एनीवे, दैट इज लव ऑफ फादर. उसी तरीके से प्रभुपाद का हमारे लिए इतना लव कि 70 साल की उम्र में अमेरिका जाके हमारे लिए भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग बेनिफिट कर सकें. सो प्रभुपाद loves us. Prabhupada has shown his love for us. Now we also have to show our love to Prabhupada by writing a love letter, व्यास पूजा letter to Prabhupada. So आपको ये करना है. क्लास के बाद आपको आधे घंटे निकालने, 45 मिनट्स, और ये करना ही है आज आपको. आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक आप लोग करिए. आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है. कल क्लास से पहले आप लोग ट्राई करें, हो जाए.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्यास पूजा ऑफरिंग लिखना, क्योंकि हम लोगों ने 4th चैप्टर में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ श्रीला प्रभुपाद गुरु। सो ये आपको प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है, ये याद कर लीजिए सब लोग, और ये इसको लिखते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं व्यास। Okay, now let us come to 5th chapter. So 5th chapter is Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Let me summarize 5th chapter. Bhakti is easier than sannyas. ये कृष्णा बताते हैं। संन्यास को क्या बोलते हैं? Renouncing all work. So from verse number 1 to 6 ये बताया गया है। The performance of निष्काम कर्म योगा 7 to 12. Knowledge बताया गया है, 3 doers in perspective 13, 14, 15, 16. Real knowledge बताया गया है। फिर 17 to 26 लिबरेशन के बारे में बताया गया है, कैसे हम परमात्मा फोकस करके लिबरेट हो सकते हैं। फिर अष्टांग योगा का थोड़ा सा सिनॉप्सिस दिया है, 1-2 श्लोक। फिर 6th चैप्टर पूरा अष्टांग योगा ही है। तो और फिर 29th श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पीस फार्मूला बोला है भगवान ने, हाउ वी कैन अटेन रियल पीस, दैट इज 29th वर्स। सो इसमें 29 श्लोक ही है। So it starts again. Arjuna becomes confused. Arjuna asks the same question 3rd chapter में जो पूछा था, which is better, work with devotion or renunciation of work? अर्जुन बहुत ही क्लियर कट है, अर्जुन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते। अर्जुन चाहते हैं कि मुझे भगवान क्लियर कट बताओ क्या करना है। आप बार बार, जैसे 4th चैप्टर में आप देखेंगे तो कृष्णा ने सैक्रिफाइस के बारे में पूरा बोला है ना, कल हम लोगों ने सैक्रिफाइस के बारे में डिस्कस किया था। फिर कृष्णा सैक्रिफाइस बारे में बोले, सैक्रिफाइस करोगे नॉलेज डेवलप होगा, नॉलेज से डिवोशन आएगा, और सो डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करो, स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर करो, भक्ति आपको पता चलेगा व्हाट इज ट्रुथ, और आप स्पिरिचुअल मास्टर को जब सरेंडर करोगे और नॉलेज देंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉलेज। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं है, कृष्णा ने बोला, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से सारे सिंफुल रिएक्शन बर्न हो जाएंगे, है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन एंड में जाते जाते कृष्णा ने वर्स नंबर 41-42 में क्या बोल दिया? सो अर्जुन गेट अप एंड फाइट। सो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, यार कृष्णा आप मजे ले रहे हो मेरे, आप जो है बोलते हो पहले भक्ति करो, डिवोशन करो, और फिर अचानक से बोल देते हो युद्ध करो। तो वही फिर से वहां यहाँ पर अर्जुन 4th चैप्टर में ये सब इंस्ट्रक्शन मिला जब उनको, तो 5th चैप्टर फिर से अर्जुन क्वेश्चन कर बैठते हैं कि भगवान वर्क विद डिवोशन और रिनंसिएशन ऑफ वर्क क्या करें। सो इसका मतलब यही है कि अर्जुन, जैसे हमारे जैसे एक जो नोवाइस स्टूडेंट होता है ना, बहुत ही नोविस, बहुत ही नेव, बहुत ना समझ जिसको बोलते हैं, नया नया भक्ति करने आता है तो बोलता है प्रभु भक्ति करूं कि पढ़ाई करूं। हम लोग भी भक्ति करूं प्रभु पढ़ाई करूं, दोनों अलग नहीं है। पढ़ाई को भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए करेंगे तो पढ़ाई भक्ति हो जाती, भगवान ने जैसा बोला वैसे पढ़ाई करेंगे तो भक्ति हो जाती। सो भगवान ने हर चीजों का इंस्ट्रक्शन दिया है, बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है, डूज एंड डोंट्स है। तो जो डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, सो वर्क एक्चुअली और डिवोशन हो जाता है, वर्क विद डिवोशन। सो रिनंसिएशन ऑफ वर्क, अर्जुन को लग रहा है कि भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, वो भक्ति है। नहीं, वो भक्ति नहीं है। अपनी ड्यूटी करते रहना, भगवान को रिजल्ट ऑफर करना, ड्यूटी को भगवान के लिए करना, ये भक्ति है। तो अर्जुन जो है एक्चुअली में हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। सो कृष्णा बहुत अच्छे से फिर समझाते हैं। कृष्णा seems to have said one thing in verse 41 and another thing in verse 42 chapter 4. So Arjuna is confused. So 41 and 42 में अलग अलग, 41 तक तो डिवोशन के बारे में बोल रहे थे, फिर 42 में मारने के लिए बोल दिया। So अर्जुन कंफ्यूज हो गया। So how many ways can you ask the same questions? So अर्जुन जो है 3rd chapter 5th chapter में सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग घुमा के, देखो कैसे पूछ रहे हैं। Which is better, intelligence और fruity work? ये 3rd chapter का था। So उन्होंने इंटेलिजेंस और फ्रूटी वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया, बट दोनों एक ही है। इफ फ्रूटी वर्क मींस, एक्चुअली अर्जुन ने फ्रूटी वर्क समझ लिया था, एक्चुअली वो वर्क विद डिवोशन ही था, मतलब भगवान के लिए सेवा करना। फ्रूटी वर्क मतलब आप वर्क कर रहे हो, उसका फ्रूट आपको चाहिए, उसको फ्रूटी वर्क बोलते हैं। इफ वन इज डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स, व्हाई शुड वन वर्क? इफ वन इज डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट, देन व्हाई शुड वन वर्क? इफ वन हैज नॉलेज, शुड वन एंगेज इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज? If knowledge is the goal of sacrifice, then if one has knowledge, why should one continue to perform work as a sacrifice? So हमारे questions frequently asked question होते हैं, but हमें यही समझना है कि अगर knowledge आएगा ना, तो हम जैसे 3rd वाला है, knowledge अगर है तो आप ड्यूटी करोगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि knowledge आ जाएगा भगवद गीता का तो आप ड्यूटी नहीं करोगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है, इसका मतलब आपने भगवद गीता अच्छे से नहीं समझा। सो नॉलेज आएगा तो आप अच्छी ड्यूटी करोगे।
सो उसी तरीके से फोर्थ में अगर आपने जैसे नॉलेज इज द गोल ऑफ सैक्रिफाइस, कल हम लोगों ने पढ़ा था। सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए। तो नॉलेज जब गेन करेंगे तो हम नॉलेज क्या गेन करेंगे? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, राइट? तो ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है कि हम शरीर नहीं आत्मा, ये नॉलेज डेवलप करेंगे। तो जब हम ये नॉलेज डेवलप करेंगे तो हम जो ड्यूटी करेंगे ना तो उसको सैक्रिफाइस के जैसे करेंगे, मतलब वो ड्यूटी को भगवान से कनेक्ट करके करेंगे। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें बहुत क्लियर होना है कि एक्चुअली में जो है भक्ति और रिनंसिएशन ऑफ वर्क, रिनाउंसिंग द वर्क करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली रिनंसिएशन ऑफ वर्क मीन्स भक्ति ओनली। रिनंसिएशन ऑफ वर्क मतलब क्या है कि वर्क को करो लेकिन वर्क से अटैच मत रहो, रिजल्ट से अटैच मत रहो, यही रिनंसिएशन ऑफ वर्क है और यही भक्ति है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें माइंड में सेट करना चाहिए। सो श्री कृष्णा रिस्पॉन्ड्स, दे बोथ आर गुड, वर्क विद डिवोशन बट वर्क विद डिवोशन इज ईजियर एंड देयरफॉर इज बेटर। सो एक तो कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते हैं, वो इट इज नॉट बेटर। बेटर क्या है? अपना वर्क करो डिवोशनल मूड के साथ। सो अर्जुना's confusion, सो अर्जुना का क्या कंफ्यूजन है? यू से वर्क फॉर सेंस एक्टिविटी मस्ट बी गिवन अप, फाइटिंग फॉर अ किंगडम इवन विद नॉलेज ऑफ द सोल सीम्स लाइक एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस टू मी। ये अर्जुन का कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई किसकी हो रही है? किंगडम के लिए। तो इसलिए अर्जुन को लग रहा है ये युद्ध तो कर्म खुद की फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, मैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए बार बार अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा था। देयरफॉर इट शुड बी गिवन, इसलिए अर्जुन चाहते थे ये छोड़ दो युद्ध को। If one works with devotion, then how is work stopped? So अगर हम वर्क विद डिवोशन कर रहे हैं, अगर कोई एक्टिविटी डिवोशन कर रहे हैं, so हमें वर्क को स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। So ये जो है अर्जुन के डाउट्स हैं। अर्जुन यहाँ डाउट हो गए थे 4th चैप्टर में, वर्स नंबर 16 to 23 अगर आप पढ़ेंगे तो ये श्लोक आते हैं, एक्शन इन एक्शन एंड इन एक्शन इन एक्शन। तो ये थोड़ा पजलिंग है, मैंने 4th चैप्टर में ये डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आप थोड़ा अभी उस लेवल पे नहीं आए आप लोग, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज एक्शन इन एक्शन एंड इन एक्शन इन एक्शन, थोड़ा पजलिंग है, बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे, सो लेट्स मूव। तो वर्स 2 to 5 यही है कि हमें क्या करना है। 2 प्रोसेस के बारे में भगवान ने बताया है। एक तो रिनंसिएशन ऑफ वर्क के बारे में बताया कि जो हिमालय चले जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और एक कुछ नहीं छोड़ते, भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, बहुत अच्छे से घर में ही रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारी सिमिलैरिटीज है लेकिन एक फाइनल अंतर आ जाता है। क्या है? यहाँ पर वो हेट्स नहीं हो, ही नीदर हेट्स और नॉट डिजायर्स फ्रूट्स, यहाँ भी नीदर हेट्स नॉट डिजायर फ्रूट्स। ये कृष्णा बता रहे हैं सारा। He is free from dualities, here also is free from dualities. He is also liberated, he is also liberated. Comes to understand that he is soul, not the body. यहाँ भी भक्ति करते करते, अपनी पढ़ाई करते करते, नाम जप करते करते आप समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बट यहाँ पर क्या होता है? एक अंतर आ जाता है। He becomes detached from everything, और वो निर्वाण में फोकस करता है कि हम जो है यहाँ से डिटैच होना है, और निर्वाण मीन्स मर्ज हो जाना है ब्रह्मन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आप बाकी चीजों से डिटैच हो जाते हो और कृष्णा से अटैच हो जाते हो, दैट इज द हाईएस्ट। सो एंड में जाके भक्ति योग जो है सुपरसीड कर जाता है बाकी सारी एक्टिविटीज, इसलिए कृष्णा भक्ति योग को टॉप मोस्ट बताते हैं। सो वर्क फॉर कृष्णा इज इजियर, सेफर एंड मेक्स यू हैप्पी फास्टर। तो यहाँ पर ये सारे चीज एनोलॉजीज और सारे अंडरस्टैंडिंग कृष्णा ने बताया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Merely renouncing all material activities will not make one happy. So हमें वो एक्टिविटी को रिनाउंस नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, by working in devotional service one can achieve the supreme without delay and be supremely happy. So हमें डिवोशनल सर्विस मूड से वर्क करना है, तो हम भगवान को भी अचीव कर लेंगे, खुश भी रहेंगे। At the same time, senses will be engaged without attachment to the fruits. When the senses are not engaged, they may drag away the mind of someone whose heart is not completely free of lust. So हम लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप याद करेंगे, कि अगर आप चाहें कि हम कुछ नहीं करें, बैठे रहें, तो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्योंकि हम 3 मोड से इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो इसलिए हमें क्या करना है? सेंसेस को इंगेज करके रखना है, कहीं ना कहीं एक प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज में सेंसेस को इंगेज करके रखना है।
पढ़ाई में, रीडिंग में, चैंटिंग में। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम इंद्रिय तृप्ति हमारा मन ले जाएगा, मूवी दिखाएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। By watering the root, serving Krishna, the devotee serves everyone and becomes dear to everyone. So जैसे हमने समझा है बहुत सारे ये रूट वाला एनालॉजी कि अगर आपको पेड़ को हरा भरा रखना है तो पेड़ के रूट में पानी डालो, उसी तरीके से कृष्णा इज द रूट। सो व्हेन वी वाटर कृष्णा और सर्व कृष्णा, सो क्या होता है, यू आर सर्विंग एवरीवन, सो यू बिकम डियर टू एवरीवन। सो व्हेन यू सर्व कृष्णा एंड एवरीवन इज डियर टू यू, सो आप भगवान की सर्विस करके आप सबको, सबके चहेते बन जाएंगे और आपके सब चहेते बन जाएंगे। You become dear to everyone and everyone becomes dear to you, and can be practiced even when the heart is not pure by following the instruction of the pure devotees. So ये भक्ति योग जो है इतना सिंपल है, इतना अच्छा है कि भले ही आपके अंदर काम वासना, गुस्सा, क्रोध सब कुछ भरे हैं आप इससे, फिर भी आप प्योर डिवोटी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप भक्ति कर सकते हैं बहुत अच्छे से, एंड यू कैन बी हैप्पी। जैसे यहाँ पर देखो एक मीम है, मेडिटेशन इज टू हार्ड, हाउ डू यू कीप वन थॉट इन योर माइंड फॉर दिस लॉन्ग? डिनर डिनर, माइंड इज कीप सेइंग डिनर डिनर डिनर। सो पॉइंट इज कि आप मेडिटेशन इज नहीं कर सकते। मेडिटेशन में आपको भूख लगेगी और आप सोचेंगे यार क्या कर रहा हूँ यार, अभी रात हो गई, डिनर कर लेते हैं, ये कहाँ फंस गया, मेडिटेशन करा रहे हैं प्रभु। तो अगर हम आपको ये प्रोसेस बताएं तो आप कभी नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने भी ये नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला, यहाँ देखो ये मेडिटेशन तो कर रहा है लेकिन सारे जो इंद्रियां, सेंसेस हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए एंगेज होती हैं। तो दोनों में कंट्रास्ट है, दोनों फोटो में आप देखिए। एक फोटो में वो चार्ल्टन मेडिटेटर, इसको बोलते हैं चार्ल्टन मेडिटेटर, तो मेडिटेट तो कर रहा है लेकिन वो कुछ और सोच रहा है, वो हलुसिनेट कर रहा है। लेकिन जब हम सारे सेंसेस को भगवान से हम लगाते हैं सो हम बहुत अच्छे से खुश भी रहते हैं, भगवान को भी खुश कर लेते हैं। सो ये इसको बोलते हैं प्रिटेंडर और इसको बोलते हैं रियल परफॉर्मर। तो अपने सेंसेस, वो एक्चुअली में लग रहा है कि वो भाग रहा, दौड़ रहा है, हमें लग सकता है ये कौन सी भक्ति है। जैसे ये देखो, ये आदमी जो है ठेला, ये जो है इसमें ट्रॉली ले जा रहा है, इसमें सारे सामान खरीदा है, लेकिन सब भगवान के लिए खरीदा है इसने, तो ये एक्चुअली भक्ति कर रहा है। कोई सोचे ये कैसे भक्ति है? भक्ति है क्योंकि वो भगवान के लिए सब कार्य कर रहा है। तो एक्चुअली क्या लगता है, जो ये आदमी जो बैठा ना इधर मेडिटेशन में, लोगों को लगता है ये भक्ति है, लेकिन ये भक्ति नहीं कर रहा है। देखो मन में कुछ और ही विचार कर रहा है, तो एक्चुअली ये भक्ति नहीं कर रहा है। ये भक्ति तो ये कर रहा है जो ये ट्रॉली लेके जा रहा है, लेकिन उल्टा हमें लगता है ये कौन सी भक्ति कर रहा है, ये तो सारा जा रहा है, परचेजिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट एक्चुअली भक्ति तो ये है जो कि आपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। सो यही भगवान बता रहे हैं। सो टाइम ओवर हो गया, हम लोग यहाँ एंड करेंगे। कल हम लोग 5th चैप्टर एंड करेंगे, छोटा सा चैप्टर है। सो विल कंटिन्यू टुमारो। नाउ टास्क फॉर यू इज, टुडेज टास्क आप सब लोगों को प्रभुपाद के लिए व्यास पूजा लिखना है। ओके, सो नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, जिस लिंक पे आप लोग क्या करेंगे बताइए। आप लोग जो है व्यास पूजा ऑफरिंग, सो ये मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। शेयर विद पीपल, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु, आवाज जा रही है? तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप लोग इस लिंक पे। हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन था मेरे। हाँ हरे कृष्णा, क्वेश्चन प्लीज। हाँ प्रभु, ये पूछना था कि अगर हम डेली बेसिस पे या हमेशा चैंटिंग करते हैं और नॉनवेज भी हम खा रहे हैं तो क्या हो, उससे कि क्या होगा कि कृष्णा हमारे डिजायर को पूरा नहीं करेंगे क्या? कृष्णा आपको सीधा नरक भेजेंगे। ऐसा क्यों प्रभु?
क्योंकि कृष्णा ने बोला नॉनवेज नहीं खाना है और आप खा रहे हो। अच्छा ठीक है प्रभु। तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप नॉनवेज इसलिए खा रहे हो क्योंकि आप बहुत अकस्टम्ड हो, बट एनीवे हाँ। आप चैंटिंग करते रहो, वो चैंटिंग हाँ। आपसे नॉनवेज छुड़वा देगा, ठीक है प्रभु। है ना। सो हाँ। इफ यू आर सिंसियर इनफ कि मैं यार नॉनवेज खा रहा हूँ, तो आप जो है आप चैंटिंग करते रहो, नॉनवेज छूट जाएगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ 1 मिनट सब लोग थोड़ा सा होल्ड रखिए, एक्चुअली में गलत लिंक शेयर हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गूगल फॉर्म एंड इस पे आप अपना जो आप वर्ड फाइल में लिख के अपलोड कर सकते हैं इस पे व्यास पूजा। सो दिस लिंक यू कैन कॉपी, दैट प्रीवियस लिंक इज फॉर डिफरेंट थिंग, सो आप उसको स्किप कर दीजिए, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये बिटली लिंक जो आया अभी, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, इस पे आपको अपलोड करना है सारा।